हमारे बाबूराव, इतनी सुंदर इतनी शानदार प्रस्तुति, और आप दिल थाम कर बैठिए। अभी ऐसी ही और प्रस्तुतियां आपके समक्ष होने जा रही हैं। उनमें से एक होगी हनुमान चालीसा पर आधारित। निश्चित ही राम भक्त हनुमान जैसा बल आप अपने अंदर उस प्रस्तुति को देखने के बाद महसूस करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए। अगर आपने वो प्रस्तुति मिस कर दी तो आप समझ लीजिए कि आपका समय यहाँ पर अच्छे से नहीं कटा है। तो एक प्रस्तुति हनुमान चालीसा के ऊपर आगामी प्रस्तुतियों में आने वाली है। निश्चित ही आप उसे निहारेंगे और अपने आप में हनुमान सा बल पाएंगे। We now move on to a captivating performance that celebrates the eternal dance of two contrasting yet harmonious elements on the surface, which are also in the Panch Tattva of nature, fire and water. On the surface, fire and water appears to be opposite, one fierce and consuming, while the other calm and nurturing. But when we look deeper, we realize that they are not just opposite, they are complement, each one balancing and supporting the other. Fire represents passion, energy and transformation. It has the power to create as well as to destroy and to inspire warmth and growth. On the other hand, water symbolizes life, serenity and renewal. It quenches thirst, nurtures life and flows freely, inspiring us to face every challenge in the path. However, their importance lies in their balance. Where there is fire, there is water to control its rage, and where there is water, there is fire to store equilibrium. This teaches us the value of coexistence and balance in life, which are the two very important traits for a successful life. And now, let us witness this beautiful interplay of opposite through an artistic expression that embodies the essence of these two contradicting forces, presenting before you a fabulous and fantastic performance. So I welcome our next performance, Fire and Water. ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ,
कोई उम्मीद को आग लगा जरा, सहरा की प्यास बुझा जरा। उम्मीद को आग लगा जरा, सहरा की प्यास बुझा जरा। घन इतना बरस के गलने लगूं, मैं पानी के ऊपर तरने लगूं। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। ओ बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। बहने दे घनघोर घटा, बहने दे पानी की तरह। सागर में जा गिरना है, बहने दे नदिया की तरह। Performers beautifully express the portrayal and relation of intensity of fire meeting the soothing calmness of water. Amazing. तो आइए अब जानते हैं हमारे देश के गौरवशाली इतिहास एवं आदर्शों के बारे में। भारत की पावन माटी में अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। देवी अहिल्या उनमें से एक है। 1720 दशक का भारत जब तमाम विदेशी ताकतों की चपेट में झूल रही थी, सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी मातृभूमि आक्रांताओं की क्रूरता से लोगों के मन में अशांति बढ़ रही थी। ऐसे में सन 1710 में महाराष्ट्र के छोटे से गांव में मुखिया के घर जन्म लेती एक प्यारी सी तेजस्विनी बालिका। शक्ति की मूर्ति, साहस का प्रतीक, शक्ति की मूर्ति, साहस का प्रतीक अहिल्या की पहचान है। कभी न रुकी, कभी न झुकी, उनका नेतृत्व ही महान है, उनका नेतृत्व ही महान है। Now it's time to witness a tribute of one of the most remarkable women of India, Devi Ahilya Holkar, a courageous lady and a great pioneer, a woman whose life was defined by strength, courage and unwavering commitment to her people. नील, क्या तुम अहिल्या देवी के बारे में इससे भी अधिक कुछ जानते हो? Sure, Vishakha ji. Devi Ahilya was ruler of Malwa region of Madhya Pradesh. She transformed her Holkar kingdom into a prosperous kingdom because he was a brave warrior who led her people with valor. And even today, the heart of our incredible India, Madhya Pradesh, proudly cherishes her legacy to remind us of her indomitable spirit. So, dear audience, we now present performance dedicated to the life bravery of legacy Devi Ahilya. Let us all take a moment to honor incredible women whose contribution is countless. Please welcome our next performance. इस दर्दनाक परिस्थिति में हम सबकी रक्षा करना, जितनी जल्दी हो सके अब इस युद्ध को रोक देना। हम सबकी सुरक्षा आपके हाथ में है और मालवा के सिंहासन का भविष्य अब आपका दायित्व है। हे शिव जी, हर बार की तरह इस बार भी अपनी अहिल्या की पुकार सुन लेना। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सूबेदार साहब की जय हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सूबेदार साहब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। दिन बीतते गए,
समय के साथ साथ मालवा ने सूबेदार जी को कंधा दिया। 12 साल बाद जब सूबेदार जी का देहांत हुआ तो बात सिंहासन पर आ गई। क्या होगा इस राज्य का? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? क्या हम गुलाम हो जाएंगे? कितने प्यार से सिंचा था इस मिट्टी को, क्या इसे ऐसे ही बिखरने देंगे? बस बहुत हुआ। मालवा पर छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज को देखने का समय आ गया है। अब समय है शस्त्र उठाने का, अपने हर दुश्मनों का सर अलग करने का। जब तक शरीर में प्राण शेष है, मालवा के सिंहासन पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मैं उठ खड़ी होंगी, अपने दुश्मनों से लड़ूंगी। मालवा अब मृत्यु का शोक नहीं, जीत का जश्न मनाएगा। सच है सही क्या जो ये भरम है, तो कर तू वही जो तेरा करम है। हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार तू, जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार। तू जो ठाने तो माने तो हक में होंगे तेरे ये सृष्टि ये संसार। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। रातों में छिप के बैठे जो तारे आएंगे फिर से राहें दिखाने। खुद ही बना ले अपनी मिसालें, मंजिल को रख दे हौसलों के पार। हो हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार अठारहवीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब इस नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया और यही से आरंभ हुई मासूम शिव भक्त से समाज सुधारक, शाश्वत, राजमाता, लोकमाता, देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। Especially a mother's love towards her child is boundless, selfless and eternal. This bond is the purest that teaches us patience, sacrifice and unconditional love. A mother is the first teacher, protector and a friend child ever knows. Her love is immeasurable. It is a cradle of comfort and a foundation of strength. Truly, a mother is irreplaceable. Without her, life would lose its essence. हम आंसुओं से भरे नयनों में भी
मुस्कुराहट भरने का हुनर अपने पास रखते हैं। हम आंसुओं से भरे नैनों में भी मुस्कुराहट भरने का हुनर अपने पास रखते हैं। वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी खुशियों की जश्न को भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ मनाने का सलीका अपने पास रखते हैं। So let's now call upon these talented performers who brought this beautifully story of life. So please welcome our next performers, Ambar Se Toda. अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, पुकार के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। सुबह मुझे रोज मैना बुलाए, जैसे कि जुगनू को रहना बुलाए, रहना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तोरे, अम्मा से जाके ना कहना बुलाए, कहना बुलाए। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे पे मोती सजाए, मोती सजाए। मछली की उंगली को थामे हुए मैंने, नदियों की धारों के गीत है गाए, गीत है गाए। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, पुकार के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। Between a mother and a child. Now, after such a captivating dance on Ambar Se Toda, let us now delve into spirituality with a soulful dance on Hanuman Chalisa, a hymn that resonates with devotion, courage and unwavering faith. Lord Hanuman, the Rudra avatar of Lord Shiva, is the virtue of devotion and courage. He is the ultimate protector, a divine force who helps us to conquer fear and obstacles. जय बजरंग, बल के सागर, दुख
चालीसा एक ऐसा भक्ति स्त्रोत है जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जिसमें श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि, उनकी महिमा और उनका अनन्य समर्पण भगवान राम के प्रति चित्रित किया गया है। इसे पढ़कर ही व्यक्ति को मानसिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को समझने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। श्री हनुमान जी का चरित्र अनंत प्रेरणा का स्रोत है। वे अपार बुद्धिशाली, बलशाली, महिमावान और परम भक्त थे। और उनका भगवान राम के प्रति समर्पण उसे तो भुलाया ही नहीं जा सकता। रामदूत कहे जाने वाले श्री हनुमान जी का भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति एवं समर्पण का भाव था। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। So get ready to delve in the divine journey. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परनौ रघुबर विमल जसु जो दायक बल चारि। ज्ञान गुण सागर जय कपी सदिव लोक कुशागर, ज्ञान गुण सागर जय कपी सदिव लोक कुशागर। अतुलित बलधामा पुत्र पवन सुत नामा, विष्णु के करम भजे ज्ञान गुण सागर जय कपी सदिव लोक कुशागर, ज्ञान गुण सागर जय कपी सदिव लोक कुशागर, जय कपी सदिव लोक कुशागर। अतुलित बलधामा पुत्र पवन सुत नामा, विष्णु के करम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय श्री राम। रूप धरि सिंह दिखावा, रूप धरि लंक जलावा,
इसी के साथ आज का हमारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने देश की आन बान और शान राष्ट्रगान की वंदना करें। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जो अभी अंतिम प्रस्तुति हनुमान चालीसा पर आधारित थी, उस पर श्रीमान मनोज जी कृष्णकांत जी नागर की ओर से 1000 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं। उन्हें शाला परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और 500 रुपये का नगद पुरस्कार में प्राप्त हुए हैं। उन्हें भी शाला परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानीय अतिथिगण, हमारे नगर के गौरवशाली अभिभावकगण, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में हम और हमारे समस्त विद्यार्थी कृतकृत हैं। हम अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। प्रगाढ़ विश्वास के साथ आगे भी आपसे ऐसे ही स्नेह की अपेक्षा हम रखते हैं। पुनः आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए दिया। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ।